حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات، فرماتی ہے شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے، میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان تباہ ہو گیا اور وہاں تشریف لے گئے. فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے. فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں. کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا، یہ ترمذی کے لفظ ہے. حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا. فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشی فرما دے گا. یہ وہ رات ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں، نبی پاک سے رات کو تنہائی میں حضور سے سنی. سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی. اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحب آگے روایت کرتی، یہ کتابوں میں آتی، یہ لوگوں کو بتاتی. حضرت عائشہ ہمارے چینل سبسکرائب کریں. روایت کیا اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا، ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان. مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا. حضرت علی کے لفظ بائی نہیں سیاستہ میں، رات کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا. ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اور فرمایا ہر روز تہجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے، پر شب برات کو نا شروع رات سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے. ادھر دیکھو میری طرف، مغرب سے اعلان شروع ہو جائے گا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو. اور بھائی یہاں بار لوٹ سیل لگ جائے، یہاں ابھی سیل لگ جائے تو 5000 والا جوڑا 1500 میں تو رش ختم ہوگا. اور بھائی اگر یہ لگ جائے، چلو یہ تو دور کی بات ہے نا، ہم تو لنگر والے لوگ ہیں. اگر لنگر کا اعلان ہو جائے تو بڑا تگڑا ہے، بڑا تگڑا. ہمارے یہاں تو شادی کی روٹی کھلتی ہے تو لوگ آخری روٹی سمجھ کے کھاتے ہیں، تو شاید اللہ ماشاءاللہ یہ آخری ہے، اس کے بعد نہ ملے گی. جب اعلان ہوتا ہے اور دعوت ہوتی ہے کہ کھلا ہے جی کھاؤ، کیا حشر ہوتا ہے، کیا انداز ہے. مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے ہیں رنگ کیا. فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا آخری حصے میں رات کے شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ، ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں. مانگو معافی. ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ معاف کر دیں گے. اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں، وہ ایک درخواست نا کل شب برات والی رات بھی دیں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. وہ جو کہتے ہیں نا بڑی بڑی کمپنیوں میں نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے تو کہیں کام نہیں بن رہا تو نسخہ دے رہا ہوں، ایک اپلیکیشن کل رات بھی جمع کراؤ، انشاءاللہ کام بن جائے گا. اور میں نہیں کہہ رہا، مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور وہ خود نہیں فرما رہے، وہ نبی پاک کا فرمان نقل کر رہے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے. وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ سارے سیٹھوں نوابوں جاگیرداروں کے پاس جا جا کے تھک گئے ہو، ایک دن میرے کہنے پر، ایک رات، ایک دیہڑی ذرا شب برات والی لگا کے تو دیکھو. پر شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو. ارادہ یہ مطلب اللہ معاف کرے، آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن وہ ماحول اس طرح کا ہے کہ شب برات میں ایک دو ساتھی کو کہا رات کو عبادت کر کے جی وہ تو ٹھیک ہے پر سویرے چھٹی نہیں، کام کرنا ہے. یعنی رب کہہ رہا ہے کہ تو آ جا شب برات کی رات، جو مانگے گا وہ تجھے. لیکن یہ ادھر نہیں توجہ کر رہا، یہ کہتا ہے سویرے 10 بجے دکان نہ کھلی تو مشکل ہو جائے گی، دفتر میں گیا تو حالات آپ دیکھیں ذرا. اب جب یقین اس طرح کا ہو تو پھر تو بھائی ساری زندگی اداروں میں درخواستیں دینی ہے. پھر آپ جیسا آپ کا مزاج ہوگا، اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے قریب ہے. تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا، پیغام دیا، فرمایا اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا. اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا. اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا. شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے. جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. کوشش فرمائے. 10 محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان، وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، جائیں 9 محرم کو جائیں، 10 کو جائیں، 11 کو جائیں، 8 کو جائیں، سفر میں جائیں، ربیع الاول میں جائیں، قبرستان میں جب بھی جائیں، منع نہیں ہے. لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے نا قبرستان. اور جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں. نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقیع میں، حضور کے کوئی بھائی بہن
हुजूर क्या करने गए? उम्मत की बख्शिश के लिए गए। शब बारात की रात लालची ना बने कि सिर्फ मैंने अपने लिए रोजी मांगनी है, कुल उम्मत के लिए मांगे रब करीम से। मांगे अपने भाई के लिए, मांगे अपनी बहन के लिए, मांगे अपने बेटे के लिए, मांगे अपनी बेटी के लिए, मांगे अल्लाह करीम। ये मांगने की रात है। पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, बख्शिश मंगन वारे कारण खुला जी दरवाजा। आए अल्लाह की बारगाह में इस रात को खोल के दुआ मांगे। कब्रिस्तानों में ना कुछ कब्रें ऐसी हैं कि जो बताती हैं कि सालों बीत गए हैं, कोई आया नहीं। कुछ कब्रें बताती हैं। कुछ बड़े कब्रिस्तान बड़े शहरों में ऐसे भी हैं कि जिनका गोरकन कहता है कि मुझे कमेटी ने कह दिया है जहां 4-5 साल कोई ना आए वहां नई कब्र बना दिया करो, वहां नई कब्र बन जाती है माशाअल्लाह। और भाई कुछ है ऐसे, कुछ है। ये जाए ना अकबर बादशाह यहाँ लेटा लाहौर में, कशीर लिखा हुआ है बर मज़ारे माँ गरीबा ने गुले परवाना सोजिज ने सदाए बुलबुले। फारसी का मकौला लिखा है उसकी कब्र पे, कहता है मैं वो गरीब हूँ, वाला बादशाह है मकबरे में लेटा है, कहता है मैं वो गरीब हूँ कि ना यहाँ कोई परवाना आता है ना बुलबुल आके गीत गाती है, कोई आता ही नहीं, कोई फातिहा नहीं पढ़ता, कोई फातिहा नहीं पढ़ता। ओ भाई कई कब्रें ऐसी हैं जिन पे सालों बीत गए कोई लौटा नहीं। और मिशकात में हदीस है मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कब्र में होता है वो तो उस आदमी की तरह है जो दरिया में डूब रहा है और वो इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा मेरे लिए दुआ मांगे, मेरी बेटी दुआ मांगे। पर बेटे को तो 27 साल हो गए, मुल्क से बाहर है, कागज बनेंगे तो अब्बे की कब्र पे आएगा ना, उसके तो कागजात ही नहीं मुकम्मल हो रहे। वो बेटे को तो मुश्किल है बड़ी, वो तो कागजात नहीं बन गए, वो तो दौलत का मुतालबा पूरा होगा तो जब भी वो काम होगा ना। इंतजार हो रहा है कब्रों में मेरा बेटा दुआ करे, मेरा भाई दुआ करे। और अगर बच्चा दफन है तो वो कहता है मेरी माँ दुआ करे, मेरा बाप दुआ करे। कोशिश करें शब बारात बाद अज़ मगरिब ये रिवाज पैदा करें, ये रसूलुल्लाह का तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्रिस्तान में जाएं और जाकर के वहां अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे कि या अल्लाह जो इस कब्रिस्तान में लेटे हैं वो भी, और जो आज तक कलमा पढ़ने वाले दुनिया से गए वो भी, और जो कयामत तक जाएंगे वो भी। ऐ अल्लाह तो सबकी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह की रहमत को महदूद ना करे कि सिर्फ मुझे बख्श दे, उसे कहेंगे अल्लाह कुल की बख्शिश फरमा। सारी उम्मत के लिए दुआ करे। शब बारात की रात नफल पढ़े। हमारे यहाँ महफिल होती है हर साल अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े शौक से बड़ा खूबसूरत हम एहतमाम करते हैं। लेकिन मैं अक्सर दोस्तों से कहा करता हूँ कि जिनको अकेले में नफल पढ़ने में मजा आए वो अकेले में पढ़े। कितनी खुली बात कर रहा हूँ मैं, पाबंद नहीं कर रहा कि आप यहाँ आएंगे महफिल में आएंगे जरूरी है भाई, आपको अकेले में मजा आता है ना। कुछ लोग तन्हाई में हो तो दिल ज्यादा लगता है, वो तन्हाई में करे अल्लाह अल्लाह कोई अर्ज नहीं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि नात सुनते हैं तो दिल नरम होता है, तकरीर सुनते हैं तो दिल नरम होता है। तो जिनका इस तरह नरम होता है वो मस्जिद में आए, बात सुने। कुछ को सबके बीच बैठ के रोना आता है। हजरत सादी शराजी फरमाया करते थे कुछ लोगों के आंसू मुझे रुला जाते हैं। फरमाते हैं कुछ की आंखें देख के रो पड़ता हूँ, लिहाजा मैं जब भी जिक्र करता हूँ महफिलों में बैठ के करता हूँ। तन्हाइयों में मुझसे नहीं होता, तो जिससे नहीं होता वो है ना मस्जिद में आए, रात इबादत करे। कल मगरिब से पहले पहले काम समेट ले सारे, और मगरिब के बाद ये रात शुरू होगी। मगरिब के बाद एक छुट्टी कर लो अल्लाह रसूल के लिए, कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला एक छुट्टी। और तौबा की रात है, ये तौबा करनी है। तौबा किसको कहते हैं? तौबा का माना है पिछले गुनाह पर पछताना, शर्मसार होना। कहते नहीं ऐ काश मैं न करता, और वो लफ्जों में नहीं, जुमलों में नहीं, तौबा रटी रटाई नहीं, शर्मसार होना और आइंदा गुनाह न करने का पक्का इरादा करना, इसका नाम तौबा है। देखें अल्लाह ताला फजल करे, मैंने पिछले साल कहा था फिर कहता हूं, मस्जिदों से ना शब बारात की रात, शब कदर की रात चीखों की आवाजें आती हैं, लोग इतना रोते हैं ना, रोना चाहिए, कम रोते हैं ज्यादा रोना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इतना ज्यादा लोग शब बारात की रात रोते हैं, क्या फिर सवेरे बददियानती खत्म हो जाती है? जो रात मस्जिद में खुल के रो के आया है उसका प्रोग्राम है ना कि अब मिलावट कभी नहीं करेगा, अब ग्राहकों से झूठ कभी नहीं बोलेगा, अब वो बददियानती का मामला कभी नहीं करेगा। लेकिन रात रोता भी रहे और सवेरे प्रोग्राम ये हो कि मैंने फिर लोगों को फरेब देना है, दाव लगाना है, तो इसने तौबा किया रात के, यहाँ बस एक्टिंग करके लौट आया है। इतनी बड़ी सजा बना करके सवार करके रात तौबा की। क्या मतलब है तौबा का? कि तौबा आपने की। हजरत हसन बसरी से किसी ने कहा तौबा क्या है? फरमाने लगे तौबा यह है कि जिस गली से रब ने तुझे मना किया है दोबारा फिर तो उस गली में नजर ना आए, तू नजर ही ना आए, और जिस जगह जाने का रब ने तुझे हुक्म दिया है फिर तो दोबारा वहां से गैर हाजिर ना हो। अगर ये प्रोग्राम ही नहीं, इरादा ही नहीं। बच्चे एक तो मुझे कहने लगे कल हजरत साहब तौबा के मौजू पर हमने गुफ्तगू करनी है, तो कोई बाप बताए कहाँ पे है। कुछ बच्चे शागिर्द हैं, कुछ मस्जिद मजमा पढ़ाते हैं। एक ने मुझसे कहा, तो मैंने कहा बेटे पहले मस्जिद में जाओ, 2 नफल पढ़ो, तौबा करो, तौबा का इरादा बनाओ, ये रस्म नहीं है। वो नाथ का भी तो तौबा कर लेना जो शब बारात के दिन लोगों ने तौबा कराने आया है।
और 25,000 का सौदा करके आया है। तू आज इस काम से तो तौबा कर लो, ये नोट फिकवाने से तो तौबा कर लो। ये रस्म है, सारी रात तौबा 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 तौबा, ये क्या माना है इसका, क्या मतलब है? इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक आदमी बादशाह का गार्ड था, सिपाही था, उसका पहरेदार था, निगरानी करता था, बड़ी वफादारी से नौकरी करता रहा। बादशाह ने उसे तनख्वाह के अलावा भी बड़ा नवाजा। उसे बादशाह ने बड़े अलाउंसेस दिए, बादशाह ने बड़ा कुछ दिया, मकान दिया। कुछ सालों के बाद बादशाह को पता चला कि ये मेरे लिए नहीं आता था, इसकी तो मेरी कनीज पर नजर थी, इसने तो रात की ड्यूटी इसलिए लगवाई थी कि कनीज पर नजर थी। तो इमाम फरमाते हैं कि बताओ फिर वो बादशाह उसके साथ क्या सलूक करेगा, वो क्या सलूक करेगा? तो लोग कहने लगे हुजूर लगता ये है कि वो ना 4-5 हिस्सों में काट के तो कुत्तों के आगे फेंकेगा। आप फरमाने लगे मेरा रब तो बड़ा ही करीम है, वो तो ऐसे नहीं करता, लेकिन बतलाओ अगर उसे पता चले तो ये रस्म के लिए आया है, इसकी तो नजर ही माल पे है, ये तो सवेरे बदलेगा नहीं, ये तो धोखा दे रहा है, ये तो तौबा करने आया ही नहीं, इसने तो ढोंग मचाया है, उसे तो पहले से खबर है। तो फिर तुम क्या उम्मीद रखते हो, फिर क्या रवैया रखते हो? शबे बारात की रात धाड़े मार मार के रोना और सुबह उसी तरह धोखा देना, उसी तरह फरेब करना, उसी तरह झूठ बोलना, उसी तरह बदयांती करना, उसी तरह लोगों को लूटना, तो ये रस्म नहीं है तौबा। तौबा तो बदल जाने का नाम है, तौबा तो फिर संवर जाने का नाम है। तौबा तो इस तरह है जिस तरह हजरत इब्राहिम इब्ने अदम ने की थी। वक्त के बादशाह थे बादशाह, जब तौबा की तो फिर हर चीज छोड़ दी, फिर माल लोगों में बांट दिया और फिर टाट का लिबास पहनकर जिंदगी गुजारी। लोगों ने कहा हुजूर ये तब्दीली है, फरमाया तब्दीली नहीं, ये मेरी तौबा है, ये मेरी तौबा है। जब तौबा की तो फिर बदल के की, जब तौबा की तो फिर तब्दील किया आपने। ये क्या तौबा हुई? सारी रात रोते रहे, सवेरे दुकान पे जाकर फिर कसम उठाई कि मुझे तो पड़ता ही 11,000 का है, ये तौबा है? तो आपने और मैंने तौबा करनी है तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह करनी है कि फिर 15वीं शाबान को बदल जाए। ये जो मौके आते हैं ना शब बारात के, शब कदर के, ये बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से दी हुआ मौका होता है कि चलो तुम्हें चांस देते हैं, तुम्हें चांस देते हैं, पाबंदी कोई नहीं, लेकिन रब की तरफ से ना मौका मिलता है, चलो तुम्हें एक मौका देते हैं, चलो अपने आप को क्लियर कर लो, तुम्हें मौका देते हैं। या अल्लाह क्या करे, कुछ भी नहीं, आके ना सच्चे दिल से 2 रखते पढ़ के तौबा करो, अर्श का मालिक पिछले सारे माफ कर देगा। कुछ भी नहीं, आओ मौका है। उन लोगों की बातों पे ना जाएं जो बिला वजह परेशान करते हैं। हमें भी रोज ही सवाल आते हैं, दिल नहीं करता, कुछ बातें ऐसी हैं जो करने को तबीयत नहीं चाहती, मैं करूंगा भी नहीं। लोगों को शब बारात का हवाला भी नहीं मिल रहा, हालांकि तिरमिजी शरीफ में हदीस मौजूद है, सियासित्ता की रवायत है, तिरमिजी में मौजूद है। पहले कहते हैं सियासित्ता से दिखाओ, जब सियासित्ता से मिल गई तो आप और किधर जाना है। और इब्ने माजा में मौजूद है मौला अली की रवायत, और जरा तरतीब देखिएगा, ये तिरमिजी की हदीस और इमाम तिरमिजी ने तो पूरा बाब बांधा है 15वीं शाबान पर, पूरा बाब। अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम नई बात को समझना चाहते। और मुझे पता क्यों ये शब बारात क्या लगता है, मुझे कभी कभी यूं लगता है कि रब फरमाता है कि रमजान से 15 दिन पहले ही पक्की सच्ची तौबा कर ले, तैयारी कर, पाक साफ हो जा, ताकि जब रमजान आए ना तो फिर तुझे पाक होने की जरूरत ना पड़े, बस फिर तू आता जाए और मैं तेरे ऊपर रहमतें निछावर करता जाऊं। बस तू पहले ही तैयारी कर, 15 दिन पहले, 14 दिन पहले तैयार हो जा। कल रात अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करें, बच्चों को तैयार करें, घरों को तैयार करें। अब जब मेहमान आते हैं ना, बड़ा कुछ करते हैं, शब बारात आए तो मुसल्ले एक दफा धोया करें, एक दफा मुसल्ले धोया करें। फर्श धोते हैं ना, मेहमानों ने आना है तो कमरे का फर्श धो के साफ करें कि खवातीन ने यहाँ सारी रात नमाज पढ़नी। ये इरादे बनाए, जिस तरह आप कहते हैं ना रात को सफर करना है तो दोपहर में थोड़ा आराम ना कर लें तो कल दोपहर में आराम कर लें, ताकि रात को रब रब करना आसान हो जाए, अल्लाह की बारगाह में बैठना आसान हो जाए। मुकम्मल तौर पर ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार करें। यहाँ भी महफिल होगी इंशाअल्लाह, इशा के मुत्तसिल बात शुरू हो जाएगी, 12 बजे तक महफिल चलेगी, फिर 12 बजे के बाद नमाज तस्बीह पढ़ी जाएगी, फिर 1 बजे फिर दोबारा आपको इजाजत दी जाएगी, कोई इनफरादी तौर पर घंटा सवा अपनी अलग से कोई इबादत करना चाहे तो वो तब भी मुमकिन हो, जैसे आपको मौका बने। मैं कह चुका हूँ, लेकिन वक्त ज़ाया ना करना, गोल्डन चांस है, उसको मिस ना करना, ये शब निजात है, इसके जरूर करीब जाना। रब करीम समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें